أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہم لک الحمد و شکر۔ آج الحمدللہ ہم زکوٰۃ کے فرض ہونے کی تاکید اور اس کی فضیلت کا بیان ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کس طرح ہم کرنا چاہیے یہ دو آیتوں سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، سورہ البقرہ آیت نمبر 43 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور دوسری اور ایک آیت ہے، اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ قال اللہ تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، سورہ النبأ آیت نمبر 5 میں۔ اور ایک آیت انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وقال اللہ تعالی خذوا من اموالهم صدقات تطہرهم وتزکیہم بها، سورہ التوبہ آیت نمبر 103 میں۔ انشاءاللہ دو آیتوں میں کیا واضح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کی طرف یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی ہے سیدھا دین، سورہ النبأ۔ یہ آیت میں کیا پتہ چلا؟ یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، یعنی اطاعت ایسی کرنا کہ خالص اللہ کے لیے کرے، یعنی جو بھی ہم کرتے ہیں یکسو ہو کر اللہ کے لیے کرے۔ اس میں یکسو ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام جو بھی کام کرتے تھے یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی یہی حکم آیا کیونکہ وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں یکسو ہو کر اور اللہ کے خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اس میں کیا نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہی ہے سیدھا دین۔ اور سورہ توبہ میں کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو زکوٰۃ وصول کریں، ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کرے اور انہیں پاک کرے اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں، سورہ التوبہ آیت نمبر کتنا 103 ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کرے اور انہیں پاک کرے، یعنی جب بھی ہمارے کنے مال ہوتا ہے یا نقد پیسہ ہوتا ہے، اس کا زکوٰۃ ہم نہیں نکالتے، وہ ہمارے لیے حرام ہوتا ہے، یعنی جب زکوٰۃ نکالتے ہی وہ پاکیزہ ہوتا ہے ہمارے لیے، یعنی اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح کیا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ میں؟ یعنی جس کے پاس بھی مال ہے وہ مال والوں سے زکوٰۃ نکالنا چاہیے اور وہ مال کو پاک صاف کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اور نماز کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ زکوٰۃ اور نماز کا نہایت گہرا تعلق کیا؟ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ایسے قرآن میں بہت جگہ یہ حدیث یہ باتیں آئے ہیں، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کر کو بہت جگہ ایسا آگو ہے، کیونکہ نماز مسلمان پر کتنا فرض ہے، 5 وقت کی نماز، اسی طرح مال والے پر زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے، یعنی جس کے پاس مال ہے اس کے پاس وہ زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے اس پر۔ اسی لیے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے، یعنی ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے؟ اب جیسے
वअक़िमुस्सलाता वआतुज़्ज़कात। इस तरह जब नमाज की बात आती है फौरन फौरन ज़कात की बात भी आती है। इसे बहुत से मकामात पर गुज़र चुकी है। दूसरा ये कि ज़कात इंसान के इख़लाक़ और माल की ततहर का ज़रिया है। यानी क्या, जब भी इंसान ज़कात निकालता है, यानी इख़लाक़ी इख़लाक़ी क्या, जब बाइख़लाक़ लोग ही ये ज़कात का माल निकालते। जो भी बख़ील है, जो भी कंजूस है, ऐसे वाले वो ज़कात ज़कात नहीं निकालते। उनको पता ही नहीं वो माल कैसा है, उस पर कितना ज़कात निकालना, ऐसा मालूम नहीं। यानी हमें जब जब हमारे पास माल है, उसका ज़कात निकालने से ये अक़ल वालों का काम है, ये इख़लाक़ी बाइख़लाक़ी है इंसान के लिए। इसी तरह वो तहर क्या है, पाक साफ कर देता है। बाकी माल को ज़कात निकालने से उसका पाक साफ कर देता है। एक हदीस के बारे में हम देखेंगे, ये क्या है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। क्या है? अब देखो, अब नमाज और ज़कात के बारे में आया, फ़ौरन इस्लाम की बुनियाद लाकर हम आपको वाज़ेह करना चाहती हैं कि इसमें क्या चीज़ें, 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ों पर रखी गई है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नंबर 1 क्या है? अल्लाह के सिवा किसी को भी शिरिक ना करो, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो। ये भी हो सकता है ऐसा। यानी दूसरा क्या, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं? अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। और नंबर 2 क्या? नमाज़ कायम करो। नमाज़ कायम करो। नंबर 3, ज़कात अदा करो। नंबर 4, बैतुल्लाह का हज करना, अगर इस्तिताअत रखता हो। देखो, नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना, ये होने के बाद फ़ौरन बैतुल्लाह का हज करना के हर हर एक पर ये फ़र्ज़ नहीं, अगर उसकी इस्तिताअत रखता हो। इसकी इस्तिताअत रखने का मतलब क्या है? माली तौर पर, यानी वो तंदुरुस्त के तौर पर, यानी उस मुल्क से, यानी सऊदीया को जाने के लिए, यानी आसान हो, यानी ऐसे जो भी यानी जो भी वो हज के लिए जाता है या उम्रा के लिए जाती हैं, यानी घर के खर्चा उठाना, ये सब भी इस्तिताअत, यानी बहुत से मालूमात है इसमें। यानी ये सब भी उसके पास है। ये माल का भी इस्तिताअत रखता हो, उस पर क्या है, हज हो और उम्रा फर्ज है। और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना, ये क्या है? ये फ़र्ज़ रोज़े है। हर एक पर भी, जो भी आकिल हो, बालिग हो, यानी बच्चे से लेकर बड़े तक हर इंसान पर रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। मगर ये कि जब जो भी सफ़र में हो या जो भी बीमार हो, उसी लिए उस वक़्त फ़र्ज़ नहीं, बाद में वो गिनती पूरी कर लेना चाहिए। इसी तरह 5 बुनियादें, इस्लाम की 5 बुनियादें ये है, ये इसी तरह नमाज़ कायम करना, ज़कात अदा करना, पहले कितने भी मकाम पर आए, अब ये 5 बुनियादा में ये नंबर 2 पर नमाज़ कायम करना, नंबर 3 पर ज़कात अदा करने की इसी तरह आई। इसी तरह इस बात से हमें क्या पता चलती है, क्योंकि जब भी जिसके पास भी माल है, उस पे ज़कात निकालना ज़रूरी है। इस हदीस से रिवायत ये है कि इससे क़ब्ल बाप बहुत से गुज़र चुके हैं, यानी ऐसे ही बाप बहुत से गुज़र चुके हैं। यहाँ 2 बार ये वाज़ेह करने के लिए लाए गए हैं, यानी 2 बातें वाज़ेह करने के लाए गए हैं कि ज़कात इस्लाम का अरकान है। यानी ज़कात क्या है? इस्लाम के अरकान में से खम्स में से है। खम्स क्या? 5वां हिस्सा है, 5वें जगह पे है। ये एक अहम रुकून है, यानी ये एक अहम रुकून है। ये ज़कात ऐसे ऐसे शख्स पर आइदा होती है जिसके पास कम अज़ कम साढ़े 52 तोला चांदी या उसकी कीमत की बराबर नगद रकम रकम इतनी अपनी ज़रूरत से ज़ायद मौजूद हो, यानी 52.5 तोले चांदी और उतना ही रकम नगद हो उसके पास, अ, मौजूद हो, उस पर 1 साल गुज़र चुका हो, यानी जिसके पास भी इतना पैसा है या इतनी चांदी है, उस पर 1 साल गुज़र चुका है, उस पर क्या है? ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। या
7.5 तोले सोना या उससे उससे ज़ायद सोना हो, उसकी कीमत लगाकर उसमें 2.5% रुपए के हिसाब से ज़कात अदा करें। यानी कितना? 7.5 तोले सोना और उससे ज़्यादा रहने वालों पर क्या है, 2.5% रुपए से हिसाब हिसाब लगाकर उसका ज़कात निकालें। ये फ़र्ज़ और हद दर्जा ज़रूरी है। यानी ये फ़र्ज़ है, यानी ज़रूरी निकालना ज़रूरी है। और एक हदीस से हमें क्या पता चलता है? हज़रत हज़रत तलहा बिन अबेदल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अहले नजद में से एक आदमी आया, जिसका सर जिसका सर के बाल पर गंदे थे। हम उसकी आवाज़ की भनभनाहट सुन रहे थे, लेकिन उसकी बात हमारी समझ में ना आई, यानी आ रही थी, यानी उसकी बात साहबा को समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो गए। यानी वो कौन? जब वो बाहर से एक साहबा आए, उन्होंने कौन एक बातें सवाल करना चाहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो सवाल साहबा को समझ में नहीं आए। वो आहिस्ता आहिस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो गए, बस वो इस्लाम की बाबत सवाल करना करते थे, यानी इस्लाम के बारे में सवाल करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, दिन और रात रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। यानी इस्लाम के बारे में पूछे तो क्या है? इस्लाम का बारे में पूछे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, दिन और रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। उसने पूछा, क्या उसके अलावा भी कोई नमाज़ मुझ पर फ़र्ज़ है? यानी 5 नमाज़ों से ज़्यादा और कोई नमाज़ मेरे पर फ़र्ज़ है? उन्होंने सवाल किए। उस पर क्या जवाब दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? पूछे, उसके अलावा भी कोई नमाज़ मुझ पर फ़र्ज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, मगर ये कि तू खुशी से पढ़े या नफ़िली नमाज़। यानी तू खुशी से नफ़िली नमाज़ पढ़े तो पढ़ सकती, फ़र्ज़ का नहीं कि नहीं, बस फ़र्ज़ क्या है? 5 वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाए, रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं। यानी आप पर नमाज़ 5 वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, उसके बाद में जितनी भी आप चाहते हो, यानी नफ़िली नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसके बाद में फ़ौरन क्या फरमाए, यानी रमज़ान के महीने के रोज़े आप पर फ़र्ज़ हैं। उसने पूछा, क्या उस महीने के रोज़ों के अलावा भी मुझ पर कोई रोज़े फ़र्ज़ हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, नहीं, मगर ये कि तू खुशी से नफ़िली रोज़े रखे। यानी फिर उन्होंने क्या सवाल किए, यानी वे रमज़ान के महीने के रोज़े मेरे पर फ़र्ज़ है, आपने बताए, क्या इसके अलावा भी मेरे पर कुछ रोज़े न फर अ, एस क्या फिर भी और भी रोज़े मेरे पर फ़र्ज़ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, नहीं, अगर तू चाहता है, यानी खुशी से नफ़िली रोज़े रखना चाहता है तो रख सकते हैं। रावी ने क रावी ने कहा कि उ उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ये फरमाए, क्या फरमाए? पहले नमाज़ की बात फरमाए, फिर रमज़ान के रोज़ों का फरमाए, तीसरी बात क्या फरमाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का भी ज़िक्र फरमाए। यानी ये 2 बातें हो जाने के बाद में ज़कात का बात भी उन्हीं को फरमाए। क्या फरमाए? उसने कहा, क्या उसके अलावा भी मुझ पर कोई खर्च खर्च करना खर्च करना है, यानी ज़कात जितना भी अब हमें पड़े हैं, 52 तोले सोना और 7.5 तोले सोने से ज़्यादा रहे तो हमें उसका ज़कात निकालना, या इससे भी ज़्यादा हो तो भी उस पर ज़कात निकालना है। यानी और कोई भी ऐसा ज़्यादा करना है, ऐसा पूछा उन्होंने। पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, नहीं, मगर ये कि तू नफली सदका करे। यानी अगर से करना चाहती हैं, यानी जो मोहताज हैं, जो फकीर हैं, जो
पैसे के लिए मोहताज हैं या जो बीमार हैं या हमें ज़्यादा और भी बढ़ चढ़कर हमें नफ़िली सदका करना चाहते हैं तो वो अपनी खुशी से कर सकते हैं। यानी फ़र्ज़ जितना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना बताए उतना ही हमें फ़र्ज़ ज़कात निकालना है। बस उस आदमी ने ये कहते हुए पीछे प फे पीठ फेर कर पीठ फेरी। अल्लाह की कसम मैं उस पर कोई ज़्यादती करूँगा और ना उसमें कोई कमी करूँगा कोई कमी। यानी ये 3 बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाए, फरमाने के बाद में वो पीठ फेर कर जाते ये कहा कि अल्लाह की कसम मैं ये बातों से ना ज़्यादा करूँगा, ना इसमें कमी करूँगा। यानी जो सदका जितना है, जितनी फ़र्ज़ है मेरे पर, उतना ही नमाज़ पढ़ूँगा, उतने ही मैं फ़र्ज़ मैं पूरा करूँगा। उसमें अगर तक बढ़ाऊँगा यानी मसलन हमारे इशा के नमाज़ 4 रकात फ़र्ज़ है और 4 रकात को 8 रकात करना यानी फ़र्ज़ कर पढ़ना ऐसा ना बढ़ाना है। अगर फ़र्ज़ नमाज़ 4 रकात है, उसमें हमें 3 रकात करना अपने हिसाब से वो कमी करना। ना बढ़ाऊँगा, ना कमी करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बोले वैसा ही मैं करूँगा कर वो कहता भी जा रहे हैं। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए ये कामयाबी होगा। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन्होंने ये कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी मेरे पर फ़र्ज़ बताए, वो मैं पूरा करूँगा। इसी तरह वो कहता भी निक अ, निकल गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कामयाबी होगा। कैसा? अगर उसने सच कहा हो तो। इसमें क्या बात पता चलता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? गैब का इल्म नहीं है। जो भी हमें कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बातों को पकड़कर वो बात कही है। अगर जो उस शख्स ने सही कहा, वो बातों पर अमल करता है, वो कामयाबी होगा। कामयाबी मतलब क्या है? दुनिया में जो सीधा रास्ते पर हम लोगों को ज़कात खर्च करना यानी सदका करना, नमाज़ कायम करना यानी जो भी मोहताज है उसका मोहताजी को हमें पूरी करना, यानी जो भी नेक काम यानी सदका का तो उसमें पैसा ही नहीं, सोना ही नहीं, कपड़ा ही नहीं, यानी एक मुस्कुरा कर हमें बात करना, यानी एक के लिए दुआ करना, ये सभी बहुत से सदके में आ जाती। ऐसा भी हमें करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कितना आसानी से ये हदीसों के ज़रिए पता चलती है। और इसका हदीस का फ़ायदा क्या है? इसमें चंद अहम फ़राइज़ इस्लाम का बयान है और नफ़िली इबादत की भी असल हैसियत वाज़े कर दी है। यानी इसमें क्या करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ का भी वाज़े बयान करे और नफ़िली भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करे। इसमें ईमान के साथ अमल अमल को बयान करके वाज़े कर दिए। यानी ईमान के साथ अमल कितना ज़रूरी है, वो भी वाज़े हो गया। ये कि अमल और ईमान का झोली दामन का साथ है। यानी झोली दामन के साथ क्या मतलब ईमान और अमल ये 2 भी साथ-साथ है। ईमान के बगैर अमल की कोई अहमियत नहीं। ईमान के बगैर अगर ईमान जिसके पास नहीं उसका अमल कोई अहमियत नहीं। अ, इसी तरह अमल के बगैर ईमान मुफीद और बा बाआवाज़ नहीं, यानी ईमान के बगैर अमल नहीं, अमल के बगैर ईमान नहीं। 2 में वो बात चली और 3 में क्या है, इसमें दावत तबलीग के पर हिकमत उस्लूब की भी निशानादी मिलती है। यानी दावत तबलीग यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के जैसा उनको समझाए, क्या पहले नमाज की दावत दिए, फिर रमज़ान के रोज़ों की दावत दिए, फिर ज़कात के बारे में, ऐसा उनकी तबलीग के बारे में भी हमको पता चला। हमें जब भी जिसको भी हमें बताना चाहती हैं, हमें हर टाइम उनके पीछे नहीं पड़ना के मौका देकर उनको जब भी उनको बात समझ में आती है उस वक़्त हमें समझाना चाहिए, क्योंकि हर टाइम हमें बोलते गए तो उनको शायद समझ में नहीं आता। जो मौका देकर अब हमें ज़कात की हदीस हमें ली, इस वजह से कि ये महीना ज़्यादा से ज़्यादा ये महीने में ज़कात निकालते हैं लोगों, ऐसा भी निकालना चाहिए कि इसकी अहमियत मालूम हो जाए। जब वो मौके पर वो बात हमें बताए तो उसकी अहमियत मालूम हो जाए, वो ज़कात करने वालों को उसमें बढ़-चढ़ कर वो काम भी कर सकते हैं। इसी तरह और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, वो क्या है
हर एक दिन समझती हैं कि रमज़ान के महीने में ज़कात निकालना, रमज़ान के महीने में हमें सदका ज़्यादा करना, ऐसा समझती हैं। ऐसा भी है, ये भी अच्छा है। और अहम बात क्या है, जब रमज़ान हो, गैर रमज़ान हो, मौका है, यानी जो भी मजबूरी की हालत में है, जो भी परेशान की हालत में है, जो भी बीमार की हालत में है, अगर से हमारे पास है, अभी तक नहीं हुआ, साल उस पर नहीं गुज़रा, अगर है हमारे पैसा बहुत है हमारे पास, हमें फ़ौरन उस पर सदका करने से ये अफ़ज़ल है। क्योंकि वो उसका काम भी आ जाता, हमारा ज़कात पहले ही निकल जाता, ये भी अफ़ज़ल है। इसी तरह भी कर सकते हैं, अगर सब पूरा जमा कर एक बार ऐसा भी निकाल सकते हैं। यानी मौका देखो करना, ये बहुत बड़ा पसंदीदा काम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी मौका जब भी मौका मिलता रहता, मौके पर काम करते रहते हैं। ये बात ये भी है कि हम अब रात में हमें अब अब शायद देखो हमें 8 रकात हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते ही, हमें ये है कि हमें रात भर हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़े, हमें अल्लाह को राज़ी करने करना कर को ऐसा सोचते हैं। क्या अल्लाह ताला अजर देने में थकता है? अल्लाह ताला नहीं थकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, एक बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक औरत आई, वो औरत ऐसी बात करती थी कि मैं रात भर नमाज़ पढ़ती हूँ, रात भर ऐसा करती हूँ। आप न आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात फ़रमाए कि ये औरत नेक है, ये अब बहुत नमाज़ पढ़ती है। ऐसा बोलने पे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, हाँ, बस ऐसा ही फरमाए। फरमा को क्या बोले, वो इतनी नमाज़ पढ़ती है, अल्लाह उसे अज़र देने से नहीं थकता, क्योंकि अल्लाह ताला अज़र देता ही जाता है। यानी वो ये अमल करने से, कौन-सा अमल अल्लाह को पसंद है, यानी जब हमें हमारा रात भी सो जाना और नमाज़ भी पूरी होना, ये तरीक़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पहली वक़्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे, यानी रात के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक़्त जागते भी थे और नमाज़ भी पढ़ते थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे, फिर सुबह की नमाज़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते थे। यही तरीक़ा मुसलसल करना, यानी दवाम इख्तियार करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंदीदा है। इसी इसी की मिसाल मैं देकर आपको कही है, यानी बरस का सदका एक बार, ज़कात एक बार निकालने का, यानी जब भी हमको मौका मिले ऐसा भी करना, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तरीक़ा है। यानी आहिस्ता-आहिस्ता बोझ डालना चाहिए। यानी एक दाई को क्या करना, पहले आराम से एक बात बताना, पहले नमाज़ का बारे में बताना, जब वो नमाज़ का पूरे करते ही, यानी नमाज़ के बारे में पूरा एहतिमाम से नमाज़ पढ़ते ही, बाद में उन्हें क्या करना, यानी थोड़ा रोज़े के बारे में बताना, बाद में वो रोज़ा भी रख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाद में थोड़ा ज़कात के बारे में बताना, यानी पहले म ब वो ज़कात के बारे में भी इंशाअल्लाह वो पूरे उतरी, यानी पहले हिजाब नहीं करती, उनको हिजाब के बारे में बताना, यानी एक-एक स्टेप बाय स्टेप बता लेते आए तो इंशाअल्लाह उनके दिल में वो जज़्ब हो आती। हमें पूरे के पूरे एक बात बताए तो उन्हें क्या करती, इस्लाम से डर जाती, हमें इस्लाम में आए तो यानी इस्लाम ऐसा है, यानी ये सभी करना फ़र्ज़ है बोल कर डर जाती। इसीलिए हमें क्या करना, एक बार एक बात बताना, उस पर अमल करने की भी उन्हा को मौका मिलता मौका मिलता है। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करना कि हमें बताना भी, और उन्ना वो करने के टाइम पे उनको आसानी भी होता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है, इस्लाम में इस्लाम में क्या है, नरमी इख्तियार करो, सख्ती ना करो। यही बताए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये मौका हमें अता फरमाया इसे समझने के लिए। अल्लाह ताला जो भी गलत है, अल्लाह ताला उसे दरगुज़र करे। अल्लाह सही बात पहुँचाने और तौहीद की दावत देने के लिए अल्लाह ताला हर एक को मौका अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला यानी जो भी कमी-पेशी है अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, उस पर उम्मीद रखना चाहिए, उस पर तवक्कल करना चाहिए। जो भी हमें करते हैं सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, और जो भी हमें तौहीद की दावत देते हैं, उस पर पहले हमें अमल करना और दूसरों को अमल करने की तौफ़ीक देना, यानी उनको भी बताना, जभी जाको वो काम पूरा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔